Yes, very good evening to everyone. Is my voice is audible clearly? Yes, sir. So as of now, we have done 3 sessions on CPC. Yes, approximately 60 questions we have done in the last classes. ठीक है, जिन लोगों ने last classes नहीं लगाई है वो I believe the online access on the YouTube is there of these videos. ठीक है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, वो delist हो जाएंगी वहां से, लेकिन जब तक available है, you people can recall the questions which we have discussed. ठीक है. So as far as today's class is concerned, let us see how many questions we can do for today. Question number 62 onwards आज हमें discuss करना है. Just hold on, let me share my screen with you people. ठीक है. So the first question that we have for the today's class is related to the foreign judgment. Yes, question number 63 है हमारे सामने. Foreign judgment से related सवाल है. The question is, a foreign judgment which is conclusive can be enforced in India by instituting a suit on such foreign judgment, by instituting executing proceedings, either A or B and none of the above. Yes, everyone. The foreign judgment which is conclusive can be enforced in India by what means? दो तरीके हैं हमारे पास कि फॉरेन जजमेंट को कैसे जो है आप इंडिया में इन्फोर्स करवा सकते हैं. सो लेट मी सी व्हाट आंसर्स यू पीपल आर गिविंग. ठीक है, सुरेंद्र इज गिविंग मी द आंसर. ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर पीपल? यस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग आ रहे हैं. दैट इज बाय इंस्टीट्यूटिंग अ सूट ऑन द फॉरेन जजमेंट or by instituting the executing proceedings. Very good. Option number C is the right answer. देखो, अगर तो मनी डिक्री है तो मनी डिक्री के केसेस में द डायरेक्ट एग्जीक्यूशन इज पॉसिबल, बट व्हेन इट कम्स टू द अदर डिक्रीज तो आपको इंडिया में एक सूट फाइल करना है. सूट फाइल करने के बाद फॉरेन कोर्ट के जजमेंट की सर्टिफाइड लगानी है. If the certified is proved to be genuine, thereby it will be conclusive, rebuttal evidences will not be allowed, and hence the court will pass a decree according to the foreign judgment. So that is how the two mechanisms are there. Question number 63 में the right answer to this question is option number C. Very good. चलिए, coming to the next one. सभी लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज क्लास में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है. जस्ट होल्ड. Yeah, the next question is question number 64. ठीक है, क्वेश्चन है the term forum shopping is related to territorial jurisdiction, subject matter jurisdiction, pecuniary jurisdiction or all of the above. सोच समझ के आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं चाहिए. ठीक है, the term forum shopping is related to territorial jurisdiction, subject matter, pecuniary or all of the above. Yes, everyone. So let me see. Right now 8 participants are there in the class and आप लोग जो है आंसर्स करेंगे इन क्वेश्चंस का. ठीक है, आई एम गेटिंग 2 आंसर्स. जिन लोगों ने भी जवाब दिया है अभी तक वो ठीक है. एंड व्हाट अबाउट अदर पीपल? यस, द टर्म फोरम शॉपिंग इज रिलेटेड टू which of the following? Territorial, peculiary, subject matter, all of the above. ठीक है, सो शिखा, शालिनी ने पहले ए किया फिर सी किया है. ठीक है, the rest of the candidates are giving me the answer, that is option number A. Option number A is the very right answer. देखो, territorial jurisdiction अगर एक से ज्यादा कोर्ट की बनती है, ठीक है, whenever there are 2 or more courts having the territorial jurisdiction in respect to the subject matter, that is whatever the suit is about. So आप अगर एक से ज्यादा कोर्ट्स में जा सकते हैं और आप उनमें से किसी एक कोर्ट में जाना चाहते हैं, that is the plaintiff has the option ना, that wherever the cause of action is there or wherever the defendant resides, carries on business, professionally works for gain, etc. So all of these courts will have the jurisdiction. So that is why the territorial jurisdiction is related to the forum shopping. So option number A is the right answer.
ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 65 है, a bar under section 21 of CPC does not applies to trial court, appellate court, revisional court, both B and C. Yes, the bar of section 21 CPC does not applies to trial court, appellate court, revisional court, both B and C. Question number 65. Yes, everyone. The bar of section 21 does not applies to trial court, appellate court, revisional court, both B and C. सोच समझ के आंसर दीजिए. I am getting few answers, but you have to think upon it. सोच समझ के आंसर करिएगा. सेक्शन की टर्मिनोलॉजी में मत जाइए, सेक्शन के असेंस में जाना है. ठीक है, सेक्शन के असेंस में जाना है, and by which you may reach to the right answer. The bar of section 21 क्या है? Objections की बात करता है ना, objections in reference to the jurisdiction of the court. ठीक है, Rini is saying both B and C. शिखा भी B and C पे ही आ रहे हैं. ठीक है, कुछ एक लोग अभी बचे हैं, आप लोग भी आंसर करिए, देन विल सी व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सेक्शन 21 की रिस्ट्रिक्शन किस कोर्ट को अप्लाई नहीं होती है, ये क्वेश्चन है. यस, व्हाट सेक्शन 21 सेज that no appellate court or revisional court shall allow such objection unless and until it is raised in the court of first instance before the settlement of the issues, or we can say at the earliest possible opportunity, and there is the consequent failure of justice. So it means that the bar of section 21 applies to the appellate and revisional court. Yes or no? Appellate और revisional court पे तो restriction लग रहा है ना कि appellate और revisional court shall not allow such objections. लेकिन section 21 का जो restriction है वो trial court पे apply नहीं होता है. Because if the trial court is there, the trial court is hearing a particular suit, you are raising the objection, the trial court has the authority to return your plea on the ground that the court does not have the jurisdiction. तो section 21 उसके लिए नहीं लगता है. लेकिन सेक्शन 21 की जो रिस्ट्रिक्शन है वो एपीलेट और रिविजनल कोर्ट्स के ऊपर होती है कि अगर ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शंस रेज नहीं हुए, उसने डिक्री सुना दिया, जजमेंट सुना दिया, तो एपीलेट और रिविजनल कोर्ट में अगर ऑब्जेक्शन जाता है तो रिविजनल कोर्ट या एपीलेट कोर्ट उन ऑब्जेक्शंस को कब अलाउ करेगा, कब नहीं करेगा. तो ऑल टुगेदर द डिस्कशन ऑफ सेक्शन नंबर 21 read with section number 99 is to be seen over here, and the answer to this question is trial court. Option number A is the right answer. ठीक है, क्वेश्चन समझना है ना. बार ऑफ सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई. किस कोर्ट के ऊपर 21 की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती है? तो ट्रायल कोर्ट के ऊपर नहीं होगी, बिकॉज सेक्शन नंबर 21 जो है दैट इज ऑब्जेक्शंस की जो बात कर रहा है, इट इज प्राइमरली फॉर द एपीलेट एंड रिविजनल कोर्ट्स. की एपीलेट और रिविजनल कोर्ट के सामने अगर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है तो वो किन सिचुएशंस में ऑब्जेक्शन अलाउ करेगी और किन सिचुएशंस में ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगी. ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. जनरली इन अ सूट फॉर पोजेशन बाय लैंडलॉर्ड अगेंस्ट हिज टेनेंट, अ सब टेनेंट इज अ नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, नॉट अ पार्टी, और नीदर ए नॉर बी. जनरली इन अ सूट फॉर पोजेशन बाय लैंडलॉर्ड अगेंस्ट हिज टेनेंट, अ सब टेनेंट इज अ नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, नॉट अ पार्टी, नीदर ए नॉर बी. यस, सोच समझ के आंसर करना है. अरे सोच समझ के आंसर करो ना. Why you people are in hurry? Question number 66. एक सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस करी थी, इफ यू पीपल कैन रिकॉल. तो क्लास में हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था, लाइक जब हम नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी डिस्कस कर रहे थे, वहां पे आपके साथ डिस्कस किया होगा. और जर्नली देखो क्या होता है, जब इसने कहा ना कि जर्नली इन अ सूट फॉर पोजीशन बाय लैंडलॉर्ड अगेंस्ट हिज टेनेंट, अ सब टेनेंट इज व्हाट. तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि देखो, अगर
जर्नल सेंस में पूछा जा रहा है तो ऐसा है कि मेरी प्रॉपर्टी, आप मेरी प्रॉपर्टी पे किराएदार, लेकिन मैंने आपको सब टेनेंसी में प्रॉपर्टी देने की परमिशन नहीं दी है, ठीक है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो एक जनरल प्रोसेस है कि टेनेंट आगे किसी और को प्रॉपर्टी अगर सबलेट करता है तो वो बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के होता है। और एक दूसरी सिचुएशन होती है जब लैंडलॉर्ड टेनेंट को परमिट करता है कि आप प्रॉपर्टी आप आगे सबलेट भी कर सकते हो, ठीक है। सो इफ it is without the permission of the landlord, then the tenant is a necessary party and subtenant is a proper party. इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मकान मालिक की मर्जी के बिना कोई भी किराएदार किसी व्यक्ति को सब टेनेंसी में प्रॉपर्टी दे देता है तो वो व्यक्ति बिना मर्जी के, है ना, बिना मकान मालिक की मर्जी की प्रॉपर्टी देता है तो वो प्रॉपर पार्टी है, सब टेनेंट जो है वो प्रॉपर पार्टी है। लेकिन अगर मकान मालिक ने आपको अलाउ किया है तो सब टेनेंट जो होता है वो नेसेसरी पार्टी हो जाता है, ठीक है। I know you people have to think about these particular type of question and you have to do it, ठीक है, उस पे करना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। and by giving the reasoning to this, now you people can refer me the right answer. yes, ये जर्नल सेंस में पूछ रहा है ना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जर्नल सेंस में मतलब होता है कि आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी लेकिन उसको कोई परमिशन नहीं है, तो आगे भी अगर वो प्रॉपर्टी सबलेट कर दे तो सबलेट जिसको किया प्रॉपर्टी, जो सब टेनेंट है वो प्रॉपर पार्टी माना जाता है, प्रॉपर पार्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में है। लेकिन अगर आप किराएदार को प्रॉपर्टी पे पोजीशन होल्ड करने के साथ साथ एक अथॉरिटी दे देते हैं कि वो आगे प्रॉपर्टी सब टेनेंसी में किसी और को दे सकता है, तो अगर कोई सब टेनेंट है तो वो नेसेसरी पार्टी है। I hope you are getting my point. Yes. So by this reasoning, what should be the right answer to this question number 66? The answer is again, शिखा आप ऑप्शन नंबर ए पे आ रहे हैं। हमने जनरल सेंस में कहा ना, इट इज नॉट द स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जनरल सेंस में। और जनरल सेंस में if the property is in the possession of the subtenant, that subtenant is to be called as a proper party, ठीक है। क्वेश्चन समझो ना, जनरली इन अ सूट फॉर पोजीशन बाय लैंडलॉर्ड अगेंस्ट हिज टेनेंट अ सबटेनेंट इज अ प्रॉपर पार्टी। लेकिन ये कौन सी सिचुएशन है, देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ साथ सब्जेक्टिव अप्रोच यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है। सब्जेक्टिव अप्रोच सिर्फ तब अप्लाई होगी अगर सवाल में वैसी चीज पूछी गई है। तो हमारे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि लैंडलॉर्ड हैज गिवन द परमिशन, तो अगर यहाँ पे ये होता है कि लैंडलॉर्ड हैज गिवन द परमिशन टू द टेनेंट फॉर सब टेनेंसी, तो हम कहते हैं कि सब टेनेंट नेसेसरी पार्टी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जनरल सेंस में पूछ रहा है, आप किसी से प्रॉपर्टी किराए पे लेते हो तो क्या वो आपको अलाउ करता है कि आप प्रॉपर्टी को किसी को सब टेनेंसी में दे दो? आंसर इज नो, एंड दैट इज व्हाई सब टेनेंसी सब टेनेंट जो होता है दैट इज टू बी जनरली कॉल्ड एज अ प्रॉपर पार्टी इन द केस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, which of the following provisions of order 1 of the CPC deals with the representative suits? Which of the following provision of order 1 deals with the representative suits? It is rule 5, rule 7, rule 8, rule 9. Yes everyone, quick, ये तो बहुत ठीक है। order 1, rule 8 is generally dealing with the representative suits, ठीक है। The next is a decision on the issue of law. A decision on the issue of law shall always operate as res judicata, shall never operate as res judicata, may operate as res judicata, or none of the above. सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं कितनी बार कह रहा हूं, ठीक है। A decision on the issue of law shall always operate as res judicata, never operate as res judicata, may operate as res judicata, and none of the above. यस एवरीवन, बड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन आंसर तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। सोच समझ के आंसर देना है। ये जो ए आंसर कर रहे हैं, आप लोग मथुरा प्रसाद की जजमेंट को भूल गए हो क्या? यस, मथुरा प्रसाद बाजू जायसवाल वर्सेस एनबीजीजी भोए की जजमेंट को भूल रहे हैं आप? डिसीजन ऑन द इश्यू ऑफ लॉ आप कह रहे हैं कि इज ऑलवेज गोइंग टू ऑपरेट एज अ रेस जुडिकाटा, हाउ इट इज पॉसिबल? यस एवरीवन,
ठीक है, सो शालिनी इज गिविंग द आंसर दैट इज इफ इट इज एरोनियस देन। ठीक है, देखो हाँ ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर सी पे कुछ एक लोग स्विच कर रहे हैं। देखो दो चीजें समझिएगा कि डिसीजन ऑफ लॉ पे कभी रेस जुडिकाटा लगता है, कभी नहीं लगता है। ठीक है, इफ द कोर्ट हैज गिवन एनी डिटर्मिनेशन इन रेफरेंस टू द इशू ऑफ लॉ, ठीक है, कोई भी डिसीजन जो है कोर्ट का लीगल पॉइंट पे है, लेकिन कोर्ट ने एरोनियस ओपिनियन दिया है। कौन सा ओपिनियन? एरोनियस ओपिनियन। तो वो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट के सामने एक ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि वेदर दिस कोर्ट हैव द जुरिसडिक्शन और नॉट। कोर्ट इस इशू पे गलत डिसीजन दे देती है that whether it has the jurisdiction, whether it does not have the jurisdiction. So अगर कोर्ट ने किसी लीगल पॉइंट पे गलत डिसीजन दिया है, इरोनियस ओपिनियन दी है, तो वो रेस जुडिकाटा के तौर पे अप्लाई नहीं होती है। एंड सेम पार्टीज के बीच में सेम मैटर को लेके सब्सिक्वेंट सूट अगर आता है, तो वो जो इशू ऑफ लॉ था वो रेस जुडिकाटा के तौर पे अप्लाई नहीं हो रहा है, बिकॉज अर्लियर कोर्ट ने प्रीवियस सूट में इरोनियस ओपिनियन दिया था। तो हम क्या कह रहे हैं कि इफ देयर इज द इरोनियस ओपिनियन ऑन लॉ, रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। बट अगर कोर्ट ने किसी फंडामेंटल लॉ को एस्टैब्लिश किया है, उसको फॉलो किया है, राइट डिसीजन दिया है, तो वो रेस जुडिकाटा के तौर पे अप्लाई हो जाता है। सो इट इज नॉट ऑलवेज द रेस जुडिकाटा विल बी एप्लीकेबल। Are you getting my point? डिसीजन ऑन इशू ऑफ लॉ पे हमेशा ही रेस जुडिकाटा नहीं लगता, और ऐसा भी नहीं कह सकते कभी भी रेस जुडिकाटा नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इट मे ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। आई होप यू पीपल आर क्लियर विद द इशू। यस एवरीवन, जजमेंट्स पढ़ो ना, जजमेंट्स पढ़ेंगे, जजमेंट्स पढ़ने के बाद ही चीजें क्लियर होगी। इफ यू आर नॉट go through with the judgment on the particular point, you are not able to handle the situation. Yes, so option number C is the right answer. जो लोग गलत डिसीजन सॉरी गलत आंसर पे आ रहे थे, I hope it is clear to everyone. Yes, Rini, Kasak and other candidates. Yes or no कर देंगे तो हम आगे चलते हैं। ठीक, क्या है रेस जुडिकाटा? अगर इशू ऑफ लॉ पे जो है तो कभी रेस जुडिकाटा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, तो इट मे ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्टिकुलर or evidence by means of which material facts are to be established are called as particulars. यहाँ पे ऑफ आएगा, इट इज नॉट और। particulars of evidence by means of which the material facts are to be established are called as. Question number 69. ठीक है, बोथ बी एंड सी 69 पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से इट विल बी बेटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्टली। Particulars Shalini Singh, there is a confusion in S and M. ठीक है, और कोई? Particulars or evidence by means of which the material facts are to be established. ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, लेट मी ड्रॉ ट्विस्टिंग फैक्टर ओवर हियर। आप इन तीनों टर्म्स को, ठीक है, व्हाट यू पीपल हैव टू डू,
इन तीनों टर्म्स को कहीं पे पेज अगर आपके पास है उस पेज पे लिखिए. इट इज फैक्टम प्रोबेंस, फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टा प्रोबेंडा. तीनों टर्म्स को कहीं पे लिखिए, राइट डाउन, and try to figure out after the class that what is the meaning of these three terms. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो इसका अगर हो पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का. And let me see that how many of you try to figure out that what should be the right approach to such kind of a question. आंसर देने को तो मैं अभी आपको सामने रख दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन वर्ड्स का एक सिनॉप्साइज्ड मैनर में एक मीनिंग जो है वो निकाल के रखे, ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए. बिकॉज एज फार एज द सीपीसी और इन द एविडेंस इज कंसर्न्ड, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर and you may get confused in such type of words. ठीक है, जैसे प्रोबेंस, प्रोबेंडम, प्रोबेंडा, प्रोबेंशिया, ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे. So you must have to see that what is the meaning, और यहाँ पे कौन सा सिनोनियम है, कौन सा जो है कुछ और बात कर रहा है. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो yes or no कर दें, या अगर कहीं पे लिख लिया तो it is better. Yes, particulars or evidence by means of which the material facts are to be established are called as factum probens, probandum, probanda, both B and C. ठीक है, so इसका सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 69, ये क्लास के बाद यू पीपल जस्ट टेल मी. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग बाय व्हाट्सएप यू कैन रेफर इट टू मी. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जस्ट आंसर की प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है, आई विश इट दैट यू पीपल मस्ट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. ठीक है, सो अगला सवाल हमारे पास है, वेयर एनी पर्सन इज एडेड एज अ डिफेंडेंट इन द सूट एज रिगार्ड्स हिम, द सूट शैल बी डीम्ड टू हैव इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम द डेट द प्लेट वाज ओरिजिनली इंस्टीट्यूटेड, फ्रॉम द डेट प्लेट वाज एडमिटेड, from the date he is joined as a party, or either A or C. Where any person is added as a party, that is added as a defendant in a suit as regards him, the suit shall be deemed to have instituted at what point of time? From the date when the plaintiff was originally admitted, from the instituted, from the date when the plaintiff was admitted, from the date when he was joined as a party, or either A or C. आंसर तो मेरे प्यास, अरे सोच समझ के दीजिए सुरेंद्र जी, सोच समझ के आंसर करिए. ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होना चाहिए. द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर गिविंग मी द राइट आंसर. अगर आप लोग पिन पॉइंटेडली मेरे पास अगर प्रोविजन भी मेंशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा. यस, विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी डील्स विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लिख के जवाब देंगे. ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्पीक ओवर हियर. वेयर एनी पर्सन इज एडेड एज अ डिफेंडेंट इन द सूट and made as a party, the suit shall be deemed to have instituted from the date when the plaintiff was originally instituted, from the date plaintiff was admitted, from the date on which the person was made as a party, or either A or C. ठीक है, पूजा आप ए कह रहे हो. जस्ट फिगर आउट, मैंने आपसे सवाल पूछा कि कैन यू पीपल रेफर विद द प्रोविजन. यस, अरे रिकॉल करो ना, दिमाग में चीजें नहीं डालेंगे तो कैसे याद रहेगा. इट इज ऑर्डर 1. ऑर्डर 1 में रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में कौन सा प्रोविजन है. यस, लास्ट के जो सब रूल्स हैं वहां पे ये चीजें है ना आपके पास. सब रूल 4 and 5 आर द प्रॉपर प्रोविजंस वेयर यू विल गेट द पॉइंट दैट इफ अ न्यू पर्सन इज एडेड एज अ डिफेंडेंट, then as regard him, when the suit shall be deemed to have been instituted. So it is instituted on from the date when he was joined as a party, read together with section number 21 of the Limitation Act. वो साथ में चलता है. ठीक है, 21 साथ में चलेगा, but the proper provision is order 1, rule 10, sub rule 5, and along with that sub rule 4 also stating about the same point of matter. Clear? याद किया करो, ऐसे नहीं चलेगा. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An order for addition or substitution can be made by the court on the application of the party so moto, either A and B, none of the above. Yes,
An order of addition or substitution can be made by a court on application suo motu, either A or B, none of the above. जल्दी जल्दी आंसर करेंगे. It is quite a rapid fire round for today. Yes, question number 71. Everyone is now coming to the option number C. ठीक है, option number C is the right answer. Addition and substitution can be made by the court as per order 1 rule 10. Sub-rule 2 and sub-rule 2 में on the application or in the suo motu, court on its own motion can add or struck out the parties. The next question is, if the necessary party is not joined in a suit, the suit shall be dismissed on that ground, can be dismissed on that ground alone, cannot be dismissed on that ground alone, none of the above. Question number 72. सवाल समझना है, समझने के बाद ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस देखने के बाद कौन सा वर्ड डिफरेंशिया क्रिएट करता है वो देखना है, एंड देन ट्राई टू एलिमिनेट द अदर ऑप्शंस. ठीक है, एक आंसर मेरे पास आया है जिसका भी है वो सही है, 2 आ गए हैं. वेरी गुड. अगर नेसेसरी पार्टी को आप ज्वाइन नहीं करते हो तो सूट का क्या होगा? क्या सूट इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू डिसमिस? कैन द कोर्ट डिसमिस द सूट ऑन दैट ग्राउंड? Cannot be dismissed, or none of the above? The right answer is option number B, that it can be dismissed on that ground because order 1 rule 9 लास्ट में एक लाइन लिखता है ना कि सूट में बी डिफीटेड इफ देयर इज अ नॉन जॉइनर ऑफ द नेसेसरी पार्टीज. सो कोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर पार्टीज नेसेसरी पार्टीज को एड ऑन कर दिया जाए तो फिर हमें डिफीट करवाने की आवश्यकता नहीं है. अगला सवाल, ए सूज बी फॉर अ रेंट. The suit is dismissed on the finding that A was not a landlord, but A and B were tenants in common. Important सवाल है. A ने B के ऊपर किराया लेने के लिए केस किया है. The suit is dismissed on the finding that A was not a landlord, but A and B are the tenants in common. A subsequent suit by A against B for the partition of property is barred, not barred, barred by the principle of res judicata, barred by the principle of order 2 rule 2. Yes everyone. Tenants in common होते हैं कि व्यक्ति प्रॉपर्टी में को ओनर्स जो है माने गए हैं. This is to be called as tenants in common. So what is there in this particular case? पहले केस में what is the title of the parties? It is tenant and the landlord. Subsequent suit mein, what is the title of the parties? It is the ownership. And when the title is the different, the concept of res judicata, neither direct nor constructive, is going to apply. So the suit is not the suit is not barred. ठीक है, so option number B is the right answer. ठीक है, मेरे पास B ही आंसर आया सभी का. चलिए, coming to the next one. A sues B and C for ₹1,000 in the same suit. B can set off a debt due to him by A alone. C can set off a debt due to him by A alone, either A or B or none of the above. That is neither A nor B. Question number 74. Illustrations. Order 8 rule 6. Set off की illustration में से सवाल है. Question number 74. I hope you people must answer the concerned question. Yes everyone. अरे इतना सिंपल सवाल. Why you people are taking time in this? If the character of the part is in both the suits, that is the original suit as well as the set off is same, then set off is possible. If the character is different, then set off is not possible. ठीक है, अब तो आंसर भी मैंने दे दिया. एंड नाउ आई एम गेटिंग द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी राइट आंसर. ठीक है, अगर बी अकेला अपना डेट सेट ऑफ करवाना चाहेगा नहीं होगा, सी अकेला अपना करवाना चाहेगा नहीं होगा. ठीक है, so, क्योंकि ए ने बी और सी के ऊपर ज्वाइंटली पैसा दिया है तो बी और सी अपना अपना डेट जो है वो सेट ऑफ नहीं करवा पाएंगे. एंड देयरफॉर नीदर ए नॉर बी कैन बी डन. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by which mode a counter claim can be set up? कौन से तरीके से काउंटर क्लेम जो है वो हो सकता है? In the written statement filed under order 8 rule 1, by amending the written statement with the leave of the court, in subsequent pleadings under order 8 rule 9 आएगा. ठीक है, यहाँ पे order 8 rule 9 आएगा. And last one is any of the above. Yes. By which mode the counter claim can be set up? काउंटर क्लेम किस तरीके से सेटअप किया जा सकता है? यस एवरीवन. ठीक है, शालिनी आज थोड़ी आंसर कर रही है.
अच्छे से सुरेंद्र सोच समझ के जवाब दीजिए। आपने एक केस फाइल किया, ऑपोजिट पार्टी WS देती है तो WS में काउंटर कर सकती है। ऑपोजिट पार्टी रिटर्न स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करती है विद द लीव ऑफ द कोर्ट और उसमें कुछ काउंटर करती है, तो रिटर्न स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करवाने में आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग मतलब कि एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट दे देती है, उसमें काउंटर कर देती है। सो व्हाट इज द रिकोर्स अवेलेबल? तो सारे के सारे तो अवेलेबल है डिफेंडेंट के पास। ऑर्डर 8 रूल 1 के अंदर भी कर सकता है, ऑर्डर 6 रूल 17 से रिटर्न स्टेटमेंट को अमेंड करके भी कर सकता है, और ऑर्डर 8 रूल 9 के अंदर जो है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स में एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट देके विद द लीव ऑफ द कोर्ट काउंटर क्लेम सेटअप कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? यस सुरेंद्र, क्लियर? थोड़ा सा किताबें खोला करो, पढ़ा करो, हर चीज लिखी है आपकी कॉपीज में। मैं आई जस्ट वंडर कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर ईदर डायरेक्ट बेस्ड और वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासेस। ठीक है, अगला सवाल है, when neither the plaintiff nor the defendant appears when the suit is called on for hearing, the court may dismiss it under Order 9 Rule 1359 where neither plaintiff nor defendant, दोनों बुलाए गए, आया कोई नहीं। Yes, ठीक है, I am getting the answer from you people. That is option number B. That is rule number 3. Rule number 3 is the right answer. ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। चलिए, coming to the next one. ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे सामने। द डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम एक्स पार्टी डिक्री हैज बीन पास्ड मे अप्लाई फॉर सेटिंग इट असाइड वेयर देयर आर मोर देन 2 डिफेंडेंट, एनी वन ऑफ देम कैन मेक एन एप्लीकेशन, एनी वन और मोर ऑफ देम कैन मेक एप्लीकेशन, ऑल ऑफ देम टुगेदर मे मेक एन एप्लीकेशन, नन ऑफ द अबव। अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, एक्स पार्टी डिक्री पास हुआ है, तो क्या सभी को एप्लीकेशन लगाना है या कोई भी एक लगा सकता है? क्वेश्चन नंबर 77 बड़ा इजी क्वेश्चन है, सोच समझ के। ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 में देख लो, अगर कहीं पे कोई शंका है तो। कुछ एक ने ऑप्शन नंबर बी किया है और एक आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर ए आया है। ठीक है, चलो, जो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, लेट मी आस्क यू पीपल, इफ यू हैव द बेयर एक्ट ऑफ CPC, जस्ट टेक आउट ऑर्डर 9 रूल 13 एंड सी द लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट की लाइंस और उसके नीचे जो एक छोटा सा पैराग्राफ है, वहां पे देखिए वेदर यू फाइंड द आंसर और नॉट। लेकिन जल्दी करिएगा, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। Where the defendant against whom ex parte decree has been passed may apply for setting it aside where there are more than 2 defendants. अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, any one of them can make an application, any one or more of them can make an application, all of them together may apply or none of them. ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 आंसर आए हैं ऑप्शन नंबर ए को लेके, बाकी द रेस्ट ऑफ द आंसर्स आर बेस्ड अपॉन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनीवन और मोर ऑफ देम कैन मेक सच एप्लीकेशंस। ठीक है, सो शालिनी, आई थिंक यू हैव फिगर्ड आउट दैट व्हाट शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखो, पेयर एक्ट पढ़ने के बाद आंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब अभी बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी है। अगला सवाल है, A sues B and C on a promissory note, B is the principal debtor, C is the surety। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का रिलेशन है। An ex parte decree is passed against both. B alone applies to set aside the decree and shows sufficient cause for his absence. The decree will set aside against B alone, C alone, both B and C, either B or C, depends upon the discretion of the court। ये भी वहीं पे आंसर है जहां पे आपने अभी पढ़ा। Yes, question number 78 answer is option number C, that if the decree is of such nature it cannot be set aside against one of the defendant, it will set aside against all the defendants. So option number C is the very right answer, both B and C। ठीक है, so coming to the next one, where a party to a suit requires information as to the facts from the opposite party, ये हमने क्लासेस में डिस्कस किया था अभी रिसेंटली। where a party to a suit requires information, where the party to a suit requires information as to the facts
from the opposite party, he may administer to his adverse a series of questions, and those questions are called as inspection, discovery, interrogatory, none of the above. Yes everyone. ठीक है, अंकुश भी कुछ जागृत हुए हैं बड़े टाइम बाद. ऑप्शन नंबर सी पे मार्क किया जा रहा है एंड एवरीवन इज गिविंग मी द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी राइट आंसर. ठीक है, इंटेरोगेटरीज. देखो इंटेरोगेटरीज, व्हेनेवर you wishes to know the case of the opposite party, so आप कोर्ट से परमिशन लेते हैं, इंटेरोगेटरीज बनाते हैं. इंटेरोगेटरीज जब आप ऑपोजिट पार्टी को देंगे, तो मैं कुछ एक रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जो अभी हमने क्लासेस में डिस्कस किया है. द मोमेंट यू गिव द इंटेरोगेटरीज टू द ऑपोजिट पार्टी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, इन हाउ मेनी डेज दैट पर्सन हैज टू आंसर टू योर इंटेरोगेटरीज. यस, विद इन हाउ मेनी डेज ऑन एफिडेविट, उसको कितने दिनों में जो जवाब है वो देना होता है. अभी अभी क्लासेस लगाई हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एवरीवन, 10 days. ठीक है, रीनी हैज गिवन मी द आंसर. 10 दिनों के अंदर अंदर इंटेरोगेटरीज का जवाब जो है ऑन एफिडेविट ऑपोजिट पार्टी को देना होता है. और अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन उसको 7 दिनों के अंदर अंदर उठाना होता है. मतलब द मोमेंट द इंटेरोगेटरीज आर सर्व्ड विद इन 7 days, he has to raise the objection if the interrogatories are scandalous और vexatious, unnecessary, irrelevant, prolix, oppressive, तो उसको जो है 7 दिनों के अंदर अंदर जवाब देना है. अगला सवाल, and affidavits are not included in the definition of evidence under section 3 of the Indian Evidence Act. Which provision of CPC is a sort of exception to this rule? ठीक है, ये वही लोग आंसर कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से CPC और एविडेंस पढ़ा होगा. And I wish few of you can give me the answer. अरे शालिनी आप कहाँ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में कहाँ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर 12 रूल 6 तो जजमेंट ऑन एडमिशंस की बात करता है. यस, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि होता क्या है कि हमारे जो एफिडेविट्स होते हैं वो एविडेंस नहीं है. ठीक है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो डेफिनेशंस हैं और ओपनिंग डेफिनेशंस में ही लिखा गया है ना कि एविडेंस एक्ट कहां पे या किसके ऊपर अप्लाई होगा, तो वहां पे लिखा गया इट डज नॉट अप्लाइज टू द आर्बिट्रेटर्स और टू द एफिडेविट्स गिवन इन द कोर्ट्स. ठीक है, तो एफिडेविट्स के ऊपर एविडेंस अप्लाई नहीं होता. इसका मतलब होता है कि एफिडेविट इज नॉट एन एविडेंस. लेकिन सीपीसी के अंदर वी हैव एन एक्सेप्शन कि अगर सीपीसी अलाउ कर दे तो हम एफिडेविट को एज एन एविडेंस मान सकते हैं. और हमारे क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है, that is I am getting 2 answers from you candidate, few of you candidates, that is option number D. order number 19 रूल नंबर 1 इज द राइट आंसर. ठीक है, एफिडेविट को लेके ऑर्डर नंबर 19 बनाया गया है, उसी का रूल नंबर 1 है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के का एक एक्सेप्शन मान लेते हैं हम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एफिडेविट्स को जनरली हम एविडेंस नहीं मानते हैं, लेकिन अगर सीपीसी का ऑर्डर 19 अलाउ कर दे तो एक एफिडेविट का एविडेंस माना जा सकता है. ठीक है, सो ऑर्डर नंबर 19 रूल नंबर 1 इज द राइट आंसर. ठीक है, और ये कुछ एक कैंडिडेट्स जैसे कसक, सुरेंद्र एंड सम अदर, ठीक है, आप लोग ये चीजें ना ध्यान में रखते नहीं है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम स्टडीज यू हैव टू फॉलो द बेयर एक्ट. व्हाई यू पीपल डोंट डू दिस? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ लेटर्स ऑफ रिक्वेस्ट under section number 77 of the CPC to examine a witness can be issued by the court. section number 77 के अंदर कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजती है. लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज जनरली की, देखो अगर हमें फॉरेन कंट्री में कहीं पे किसी विटनेस को एग्जामिन करना है, या फॉरेन कंट्री की कोर्ट ने इंडिया में किसी व्यक्ति को एग्जामिन करना है, तो उसके लिए लेटर्स ऑफ रिक्वेस्ट आते हैं. सेक्शन नंबर 77 और सेक्शन नंबर 78 इज द लॉ ऑन दिस. सवाल आपका है कि अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट under section number 77 of the CPC is to examine a witness can be issued by the court in lieu of issuing of the summons, in addition to the issuing of summons, either A and B or none of the above. Question number 81. The right answer is option number A, that is in lieu of the issuing of commissions. तो या तो हम देखो कमीशन इशू कर देते हैं. ठीक है, कमीशन इशू का मतलब कि जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया में हमें किसी विटनेस को एग्जामिन करना है, हम या तो कमीशन भेजेंगे, कमीशन वहां पे जाएगा, उस व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और ले आएगा. लेकिन अगर हमें लगता है कि कमीशन इशू करना कन्वीनियंट नहीं है, तो हम कमीशन की जगह क्या भेज देंगे, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे, कंसर्न कोर्ट को काम दे देंगे कि वो वहां पे विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमारे पास रिपोर्ट भेज दे. सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन ल्यू ऑफ इशूइंग ऑफ द कमीशन, जो है दैट इज द राइट आंसर.
ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने बेरेक्ट अब खोल के रखा है और जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। अगला सवाल है, अ रिसीवर कैन बी अपॉइंटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, दैट इज नीदर ए नॉर बी। क्वेश्चन नंबर 82, a receiver can be appointed during the pendency of proceedings after the termination of proceedings both A and B, neither A nor B। जब हम प्रोसीडिंग्स वर्ड यूज करते हैं तो ट्रायल, अपील, एग्जीक्यूशन वो हर उस चीज का हिस्सा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। सो रिसीवर कैन बी अपॉइंटेड ओनली ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। एक बार जब प्रोसीडिंग्स ही खत्म हो गई, एग्जीक्यूशन एटसेट्रा भी डन हो गया, उसके बाद आप रिसीवर अपॉइंट करके क्या करोगे? ठीक है, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिसीवर्स कैन बी अपॉइंटेड। ऑर्डर नंबर 40 के अंदर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसीवर एंड देयर वी विल डिस्कस इट। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एपिलेट कोर्ट कैन नॉट re-examine a question of fact, re-examine the question of law, re-appreciate the evidences, none of the above। क्वेश्चन नंबर 83, सोच समझ के आंसर करिएगा। ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, अरे सोच समझ के करो, जल्दबाजी कोई नहीं है। एन एपिलेट कोर्ट कैन नॉट, क्या एपिलेट कोर्ट दोबारा से किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को री-एग्जामिन नहीं कर सकता? यस और नो? क्या एपिलेट कोर्ट किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को दोबारा से री-एग्जामिन नहीं कर सकता? यस और नो करके जवाब दो, मैं राइट आंसर तक पहुंचाता हूं। यस, एबीसी करिए मत, ठीक है। यू टेल मी कि क्या एपिलेट कोर्ट री-एग्जामिन नहीं कर सकता क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को? यस इट डू। क्या एपिलेट कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ को री-एग्जामिन नहीं कर सकता? यस इट डू। क्या एपिलेट कोर्ट एविडेंसेस को एप्रिशिएट या री-एप्रिशिएट नहीं करता है? यस इट डू। सो आप ये जो लिखा है ना, एपिलेट कोर्ट कैन नॉट, तो री-एग्जामिन भी करता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को, क्वेश्चन ऑफ लॉ को री-एप्रिशिएट भी कर लेता है। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर, कि ऊपर में से कुछ भी नहीं है, ये तीनों चीजें एपिलेट कोर्ट जो है वो कर लेती है। ठीक है, सो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सही सवाल तक पहुंचने का तरीका देखो, पहले आप ये देखेंगे कि एपिलेट कोर्ट क्या नहीं करता है, ये सवाल पूछ रहा है, क्या नहीं करता है। सो री-एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट ये करता है, री-एग्जामिनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ ये भी करता है, री-एप्रिशिएशन ऑफ द एविडेंसेस ये भी कर लेता है। सो ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, मतलब इन तीनों में से हमें कोई भी सुटेबल आंसर नहीं मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऐसे सवालों में कभी कभी ट्विस्टिंग फैक्टर्स होते हैं, तो एक एक ऑप्शन को क्वेश्चन के साथ जो है सेटल करने की कोशिश करनी। द नेक्स्ट वन इज, a receiver is an officer of the court, agent of the plaintiff, agent of the defendant, none of the above। अब ऐसे सवालों का आप आंसर देते हैं ना, like you people will refer over here option number A, option number A, option number A, so it will not create any difference because everyone know that receiver is the officer of the court। बाकी कुछ options में there is nothing which is going to twist your रीजनिंग। ठीक है, सो एजेंट ऑफ द प्लेंटिफ या एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट रिसीवर को नहीं कहा जाता, इट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जहां पे ट्रिकी क्वेश्चन है वहां पे आंसर जो है वो सही से करना है। अगला क्वेश्चन है, सस्पेंशन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इज कॉल्ड एज रिमांड, स्टे, इंजंक्शन, नन ऑफ द अबव। सोच समझ के आंसर करिएगा, है ना, जल्दबाजी नहीं है। सस्पेंशन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इज कॉल्ड एज रिमांड, स्टे, इंजंक्शन, नन ऑफ द अबव। देखो फिर रिमांड क्या होता है? अगर तो आपको रिमांड का मतलब पता है तभी आप ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे होंगे ना। यस, रिमांड का मतलब ये होता है कि आपने एपिलेट कोर्ट में प्रोसीडिंग्स लगाई, एपिलेट कोर्ट ने केस को वापस भेज दिया। सो सस्पेंशन थोड़ी लगा है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को अगर इन द मिड वाइल रोका जाता है, सस्पेंशन किया जाता है, तो उसको हम स्टे कहते हैं, इंजंक्शन नहीं कहेंगे, बिकॉज इंजंक्शन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, कभी कभी हम जर्नल सेंस में स्टे और इंजंक्शन दोनों एक जैसी चीजें समझते हैं, दोनों अलग अलग है। किसी भी कोर्ट के प्रोसेस को रोकते हैं जब हम, या किसी भी गवर्नमेंट के प्रोसेस को जब रोका जाता है तो उसको स्टे कहा जाता है। एंड व्हेन इट इज कि पार्टीज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, देन वी विल कॉल इट एज इंजंक्शन। रिमांड इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। जब हायर अथॉरिटीज केस को वापस लोअर अथॉरिटी के पास भेजती है तो उसको हम कहते हैं रिमांडिंग बैक ऑफ द केस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टे। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is, the plaintiff withdrawing the suit with liberty to file a fresh suit is not bound by the law of limitation
bound by the law of limitation in the same manner as if the first suit has not been filed at all, bound by the law of limitation in the same manner as if the appeal has not been preferred, depends upon the order of the court. अभी आज ही डिस्कस किया है, Let me see how many of you can recall the concerned provision. Yes everyone, सिर्फ एक आंसर, ऐसी तो मुझे उम्मीद नहीं थी, 2 जो क्लास में बैठे थे वो तो सब साइलेंट है. यस 3 4, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और नॉट? यस शिखा भी ऑप्शन नंबर बी पे आ रही है, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी राइट आंसर कि जब भी आप एक सूट फाइल करते हैं किसी फॉर्मल डिफेक्ट या सफिशिएंट ग्राउंड के कारण से आपने उस केस को विड्रॉ कर लिया, विद द लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश सूट, कोर्ट आपको अलाउ करता है. सो ऑर्डर नंबर 23 के अंदर पूरा प्रोसेस बताया गया है और ऑर्डर नंबर 23 में रूल नंबर 2 को हम फॉलो करते हैं, जो ये कहता है द प्लेंटिफ इज बाउंड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन इन द सेम मैनर एज इफ द फर्स्ट सूट हैज नॉट एट ऑल फाइल्ड. और ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 2 की एक एक्सेप्शन है, सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन नंबर 3 लिमिटेशन एक्ट के अंदर, जो ये कहते हैं कि जितना समय आपने ओरिजिनल फर्स्ट प्रोसीडिंग्स कंटेस्ट करी थी, विड्रॉल के बाद आपको उतना ही समय जो है दोबारा एड ऑन होके मिल जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन. An order granting or refusing permission to withdraw the suit with permission to file a fresh suit on the same cause of action is a decree, appealable order, revisable order, or none of the above. An order granting or refusing the permission to withdraw the suit with permission to file a fresh suit on the same cause of action is a decree, appealable order, revisable order, or none of the above. Question number 87. देखो जो बी आंसर कर रहे हैं वो सोच समझ के करिए, ये चीज कुछ और है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो लोग आ रहे हैं वो सोच समझ के आंसर करिए. देखो बेसिकली क्या है कि ऑर्डर नंबर 23 के अंदर आपने रूल 1 के अंदर सब रूल 4 के अंदर विड्रॉ की बात की गई है, सब रूल 3 and 4. सो ऑर्डर नंबर 23 सब रूल नंबर 1 सब रूल 3 और 4 अगर आपको ऑर्डर 43 की लिस्ट में मिल जाता है तो अपीलेबल होगा, नहीं मिलता है तो नहीं होगा. और अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो जल्दी से एक बार स्टार्टिंग के 4 5 या 10 पॉइंटर्स में देख लो ऑर्डर नंबर 43 में कि क्या ये अपीलेबल है या नहीं. एन ऑर्डर refusing the permission to withdraw the suit with permission to file a fresh suit on the same cause of action. आपने कोर्ट में केस फाइल किया, बाद में विड्रॉ किया, विड्रॉल के साथ आपने परमिशन मांगी नया सूट फाइल करने की, कोर्ट ने आपको परमिशन नहीं दी, तो क्या अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो या नहीं? इसको टेस्ट करने के लिए आपके पास ऑर्डर नंबर 43 की लिस्ट है, उसमें देखो क्या ये अपीलेबल है या नहीं है. यस और नो करके जवाब दे दीजिए. आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स. यस, तो रेनी ने जैसे मेरे ख्याल से देख लिया होगा, इट इज नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर. तो अगर अपील का प्रावधान नहीं है तो नहीं जाएगी. सो इट इज नॉट अ डिक्री, इट इज नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर, सो इट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ 115 ऑफ द सीपीसी. ये एक रिवाइजेबल ऑर्डर है. आप हाई कोर्ट में रिवीजन जो है वो फाइल कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी ऐसा जजमेंट, कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील नहीं जा सकती, उसके अगेंस्ट रिवीजन्स जो है वो फाइल हो सकती है. सो सेक्शन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? यस और नो, वाई और एन करके मेंशन कर दो. अगर समझ में आ गया तो भी बता दो, नहीं आया तो बता दो. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. आपने कोर्ट में परमिशन मांगी विड्रॉल की, साथ में आपने कहा कि मुझे लिबर्टी दे दो कि मैं नया सूट कर पाऊं, कोर्ट ने आपको परमिशन नहीं दी. अब आप जो है क्या करोगे? तो आप डिक्री नहीं, ये डिक्री नहीं है, ये अपीलेबल ऑर्डर भी नहीं है, लेकिन ये एक रिवाइजेबल ऑर्डर है. आप इस कोर्ट के आदेश के लिए रिवीजन जो है हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा नीड टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड, हैज टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड, कोर्ट टू सी ऑन इट्स ओन एज टू इंपेरेटिव ऑन द कोर्ट, नन ऑफ द अबव. द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा नीड टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड, has to be specifically raised, the court to see of its own as it's imperative on the court, or none of the above. ठीक है, सब्जेक्टिव अप्रोच पे नहीं जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, रेस जुडिकाटा की जो प्ली है
वो स्पेसिफिकली डिफेंडेंट को रेज करनी पड़ती है, तभी सूट पे रेज़ जुडिकाटा लगता है, अदरवाइज वेवर हो जाएगा और सेकंड डिग्री बाइंडिंग हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाई क्वेश्चन नंबर 88 का द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट हैज टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आई बिलीव आज हम क्वेश्चन नंबर 100 तक शायद पहुंच जाए। अगला सवाल है, एन अबेटमेंट ऑफ सूट मे बी टोटल, मे बी पार्शियल, मे बी टोटल और पार्शियल, नन ऑफ द अबव। आज ही डिस्कस किया अबेटमेंट, सॉरी ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अबेटमेंट ऑफ सूट मे बी टोटल, मे बी पार्शियल, मे बी टोटल और पार्शियल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 89। थोड़ा सा सोच समझ के, अबेटमेंट थोड़ा सा सोच समझ के। चलो मैं आपको छोटा सा एक हिंट देता हूं कैसे रिकॉल किया जा सकता है और राइट आंसर तक पहुंचोगे आप। कि अगर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस किया है, डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया, या फिर डिफेंडेंट कोर्ट में आया लेकिन जवाब नहीं देना चाहता है, तो उस केस में हम एलआरस को ऑन रिकॉर्ड लाने की जो रिक्वायरमेंट है उसको एग्जम्प्ट कर सकते हैं, और डीम्ड एडमिशंस के बेसिस पे अगर कोर्ट को लगता है कुछ डिग्री पास करना है तो डिग्री भी पास कर देगी, और अगर कोर्ट को द रेस्ट ऑफ द सूट अबेट करना है तो अबेट भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 4। सो वहां से आपको राइट आंसर तक पहुंचना है। इट मे बी टोटल, इट मे बी पार्शियल, मे बी टोटल और पार्शियल, और नन ऑफ द अबव। सुरेंद्र और रिनी दोबारा से अपने आंसर को रेक्टिफाई करेंगे, बाकी तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी पे ही आ रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो देखो जनरली अबेटमेंट पूरे सूट का हो जाता है, लेकिन अगर डिफेंडेंट किसी चीज को एडमिट ही कर रहा है, पार्टली एडमिट कर रहा है, तो उतना उसके अगेंस्ट डिग्री बना देंगे ना, क्या परेशानी है। सो अबेटमेंट मे बी इन टोटल, मे बी पार्शियल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The next one is abatement of suit can be set aside under which provision? Order 22, Rule 9, Rule 8, Rule 7, Rule 10. कितना सिंपल सवाल। ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप तो सारे ही आंसर ठीक कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 90। इतना बोलने के बाद भी सही आंसर पे नहीं आ रहे। यस, अबेटमेंट ऑफ सूट कैन बी सेट असाइड अंडर ऑर्डर 22, रूल 9, रूल 8, रूल 7, रूल 10। अबेटमेंट सेट असाइड करवाने की एप्लीकेशन कौन से प्रोविजन के अंदर लगती है? यस 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 यस। अरे ये रूल 10 वाला कौन? सुरेंद्र जी, 22(9) की एप्लीकेशन नहीं लगेगी टू सेट असाइड द अबेटमेंट। ऑर्डर 22 रूल 9 विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अबेटमेंट। याद करो, आर्टिकल नंबर 121 लिमिटेशन एक्ट 60 दिनों का समय देता है। फ्रॉम द डेट ऑफ अबेटमेंट यू हैव 60 days टू फाइल द application to set aside the abatement order. So abatement of the suit can be set aside under which provision? That is order number 22 rule number 9. Rule number 10 में तो assignment, devolution etc की बात है। देखो ये ऐसे आप लोग इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर अभी तक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं कर पाए हो ना, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है आप लोगों का। ठीक है, यू पीपल अब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में तो आई डोंट थिंक यू पीपल हैव टू रिकॉल समथिंग लाइक दैट। यस, अगला क्वेश्चन है, अमेंडमेंट अलाउड अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 मस्ट बी कैरिड on in cases no time is fixed for carrying on the amendment within 7 days, 14 days, 15 days, 30 days. Yes, अगर अमेंडमेंट की एप्लीकेशन आपने फाइल करी, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया कि कितने समय में अमेंडमेंट करके लाओ, तो कितने समय में सीपीसी टाइम देता है आपको? यस, ऑर्डर 6 रूल 18 के अंदर समय लिखा गया है ना, दैट विद इन हाउ मेनी डेज टू आंसर। आई एम गेटिंग ओवर हियर। यस, इट इज 14 days, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी राइट आंसर। ठीक है, 14 दिन का समय जो है जो सीपीसी ने फिक्स कर रखा है। अगला सवाल, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स शेल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्लीडिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, और नन ऑफ द अबव। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्डर 6 रूल 17 से रिलेट करता है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग शेल बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ प्लीडिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, नन ऑफ द अबव। Only one answer, from the date of pleadings. Yes,
अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग किस डेट से इफेक्टिवनेस में आती है? जिस दिन आप प्लीडिंग्स अमेंड करके दे देते हैं उस डेट से ही जो है वो इफेक्टिवनेस में आ जाएगी, फ्रॉम द डेट ऑफ द प्लीडिंग्स इटसेल्फ। ठीक है, तो रिलेट बैक कैसे किया हमने कि जैसे आज आपने डब्ल्यूएस पेश किया, डब्ल्यूएस पेश करने के बाद आपने 10 दिन बाद अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई, सो हम ये मान के चलेंगे कि आप पिछली डेट से ही अमेंडमेंट हमारे सामने लेके आ चुके थे, जो भी आपने नई प्लीडिंग्स में रेज किया है। सो फ्रॉम द डेट ऑफ द प्लीडिंग्स इटसेल्फ द अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग शैल बी इफेक्टिव। आंसर समझ पाए या नहीं समझ पाए? आज मान लीजिए आपने कोर्ट में प्लेट दे दिया, टुडेज 27th, 10 दिन के बाद आप एक एप्लीकेशन लगाते हो अमेंडमेंट इन द प्लेट की, उसके बाद कोर्ट उसको डिसाइड कर देता है। तो अगर आप अमेंडमेंट अपनी प्लेट में करते हो तो माना जाएगा कि 27 तारीख को जो प्लेट दी गई थी उसी डेट पे अमेंडमेंट करके जो आपने चीजें ऐड ऑन की है वो पहले से ही हो चुकी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक अप्लाई हो जाती है। सो फ्रॉम द डेट ऑफ प्लीडिंग्स द अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग शैल बी इफेक्टिव। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, the service of summons can be effected by the plaintiff directly as provided under order 5 rule 7 9 capital A 1920। दस्ती सर्विस, दस्ती समझते हैं ना कि जब इन हैंड सर्विस प्लेंटिफ खुद करवाता है, सो कौन से रूल के अंदर है ये? रूल 7, रूल 9 कैपिटल A 1920। आई एम गेटिंग 2 आंसर्स। 9 कैपिटल ए इज द राइट आंसर। रूल नंबर 9 कैपिटल ए, ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है ये राइट आंसर है। दस्ती सर्विस जो होती है जो प्लेंटिफ बाय हैंड करवाता है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, a decree shall be drawn up within 15 days from the date of judgment, 30 days from the date of judgment, 1 month from the date of judgment, 2 months from the date of judgment। yes, इतना सिंपल सवाल। ऑर्डर नंबर 20 में जाएंगे और फटाफट आंसर जो है उसको खोजेंगे। डिक्री कितने दिनों के अंदर अंदर बन जानी चाहिए? अरे 30 डेज। ऑप्शन नंबर बी में कौन जा रहा है? 15 डेज। यस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जजमेंट जिस दिन पास हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल प्रोनाउंसमेंट, 15 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट को डिक्री बना देना चाहिए। ठीक है, अब वो बनता नहीं है वो एक अलग विषय है। क्वेश्चन नंबर 94, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, what may be effect for non-filing of the WS by the defendant within the time permitted by court। कोर्ट ने जो आपको समय दिया, अगर आप उस समय सीमा में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं डिफेंडेंट जो है, तो उसका क्या इंपैक्ट होता है? द फैक्ट सेट आउट इन द प्लेट मे बी ट्रीटेड एज इम्प्लाइड एडमिशन। A judgment could possibly be passed in the favor of the plaintiff without requiring him to prove any fact mentioned in the plaint। It will be unlawful for the court to pronounce the judgment in the plaintiff's favor for this reason alone। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है both A and B। शालिनी ने जल्दबाजी में आंसर दिया है। शालिनी, ऑप्शन नंबर डी को भी देख लो एक बार, ऑर्डर 8 के रूल नंबर 5 को नजर मार लो और चीजें याद आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 95 में, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, जो भी चीजें प्लेंटिफ ने कही है माना जाएगा डिफेंडेंट उनको डीम्डली एडमिट कर रहा है, और दूसरी चीज कि कोर्ट प्लेंटिफ की प्लेंट के बेसिस पे ही उसके फेवर में जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है और ये लॉफुल है। ठीक है, एक्स पार्टे है, डायरेक्ट एक्स पार्टे जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, where the defendant fails to file WS within the time permitted by court, the court shall proceed to pronounce the judgment on the basis of the facts contained in the plaint। The court may require the plaintiff to prove the fact contained in the plaint instead of proceeding on account of the deemed admission, either A and B, none of the above। ठीक है, दो आंसर्स आए हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ कि या तो कोर्ट डायरेक्ट जजमेंट पास कर दे या कोर्ट प्लेंटिफ को कह दे कि जो तुम प्लेंट में कह रहे हो उसको प्रूव कर दो और उसके बाद हम आगे चलेंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी। यस, कितने ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं? आई बिलीव एवरीवन इज देयर इन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑर्डर 8 रूल 5 से ही कनेक्टेड है अगेन। द नेक्स्ट प्रोविजन, मेक द करेक्ट सेंटेंस। In commercial transactions, the grant of interest at the contractual rate ought to be an exception. Grant of interest at reduced rate is a rare exception. Grant of interest at reduced rate is a rule, both A and B। Question number 97. Yes,
आप लोगों को ये आइडिया है कि क्वेश्चन कौन से प्रोविजन से रिलेट कर रहा है? एनीवन हैविंग एन आइडिया दैट with reference to which provision this section is this question is relating about? yes or no कर दो। जिन्होंने सीपीसी भी पूरा ऑल टुगेदर नहीं पढ़ा है वो लोग तो मेरे ख्याल से नहीं जान पाएंगे। ठीक है, सुरेंद्र ने यस किया है। 35 शालिनी, 35 में तो कॉस्ट है। 34 में है ना इंटरेस्ट रिलेटेड इश्यूज, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड ये सवाल है। ठीक है, एंड द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 97 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस द ग्रांट ऑफ इंटरेस्ट एट रिड्यूस्ड रेट इज अ रेयर एक्सेप्शन। ठीक है, तो कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कितने समय का दिया जाएगा, वो सारी चीजें हमारे सेक्शन नंबर 34 के अंदर रखी गई है। ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट से लेके जजमेंट तक का इंटरेस्ट मिलता है, जजमेंट पास होने के बाद फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन है पार्टीज के बीच में तो उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, और बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है उससे हम कम कब देंगे और कब नहीं देंगे। सो ऑल दैट थिंग इज देयर इन सेक्शन नंबर 34 ऑफ द CPC। ठीक है, 34 of CPC, and option number B is the right answer. A grant of interest at a reduced rate is a rare exception. Section number 34 एक बार डिटेल में आप लोग इसको गो थ्रू करेंगे तो आई बिलीव यू विल गेट द राइट आंसर। बाकी क्लासेस में तो जब हम कॉस्ट वाला एरिया डिस्कस करेंगे so at that point of time we'll discuss it. The next question is, it can be awarded only when there is an agreement between the parties. Again section number 34 से सवाल आ गया। It can be awarded only when there is an agreement between the parties. Interest prior to the suit, interest pendente light, interest from the date of decree, none of the above. It can be awarded only when there is an agreement between the parties. Interest prior to the suit, pendente light, interest from the date of decree, none of the above. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो सेक्शन नंबर 34 इंटरेस्ट पेंडेंटे लाइट की तो बात करेगा कि जितना समय पार्टीज के बीच में प्रोसीडिंग चली, अगर रिकवरी ऑफ मनी का केस है तो उतना ब्याज तो पार्टीज जो भी इंटाइटल्ड है उसको मिल जाएगा। डिक्री पास होने के बाद भी अगर आपको कुछ अमाउंट देना है वो भी दिया जा सकता है अंटिल इट्स रियलाइजेशन। लेकिन प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगर कोई इंटरेस्ट देना है तो वो सिर्फ तब मिलता है अगर पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट ऐसा है, अदरवाइज कोर्ट नहीं देती है बिकॉज सेक्शन 34 इज साइलेंट अपॉन दिस। अगला सवाल, द अमाउंट मस्ट बी रिकवरेबल एट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। Amount must be recoverable at the date of filing of the plaint in the case of legal set of equitable counterclaim both B8s. Amount must be recoverable at the date of filing of the plaint. ठीक है, so I am getting an answer that is option number A. Question number 99 का option number A जो है वो right answer है। Equitable set off is not at all related with this, वो equity के grounds पे चलता है। सेम ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बस। काउंटर क्लेम ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, और काउंटर क्लेम रिटर्न स्टेटमेंट देने से पहले कोई भी आपके पास कॉज ऑफ एक्शन आया है वो आप कोर्ट में कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लीगल सेट ऑफ की जब बात आती है वो अमाउंट रिकवरेबल होना चाहिए एट द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। जिस डेट पे प्लेंटिफ ने, ओरिजिनल प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट फाइल किया है उस डेट पे आपके पास वो पैसा रिकवर करने की इंटाइटलमेंट होनी चाहिए एंड ओनली देन इट विल बी देयर। सो लीगल सेट ऑफ इज द राइट आंसर। ठीक है, शालिनी आप बोथ पे मेरे ख्याल से आ रहे हैं। बोथ बी एंड सी इज नॉट द राइट आंसर बिकॉज काउंटर क्लेम के लिए रूल कुछ और है ना, कि जैसे मैंने एक कंटेस्ट किया आपके अगेंस्ट केस, आपको काउंटर करना है तो जिस भी कॉज ऑफ एक्शन पे आप काउंटर करना चाहते हैं वो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट पेश करने से पहले वो कॉज ऑफ एक्शन आपके पास आ जाना चाहिए। तो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में आप वो मेंशन कर दो या एडिशनल डब्ल्यूएस में डाल दो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपका डिफेंस देने से पहले आपके पास कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर सेट ऑफ की बात होती है तो सेट ऑफ मस्ट बी लीगली रिकवरेबल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। तो सेक्शन नंबर 3 लिमिटेशन एक्ट के अंदर सबसेक्शन 2 में क्लॉज नंबर ए जो है वो सेट ऑफ से रिलेटेड बात करता है, रेड टुगेदर विद ऑर्डर इन रूल 6 ऑफ द सीपीसी। तो देयर यू विल गेट द राइट आंसर। कॉपी में एक बार क्रॉस चेक करिएगा, तो वहां पे हमने डिस्कस किया है कि कैसे ये चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। इट इज डन इन द सीपीसी एज वेल एज इन द लिमिटेशन एक्ट, तो वहां से एक बार फॉलो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी आज हमने पूरी कर ली। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सूट
execution, suit as well as execution, or none of the above? Principle of res judicata applies to suit, execution, suit as well as execution, or none of the above? Yes, question number 100, option number C is the right answer. res judicata suit पे भी लगता है और execution proceedings पे भी लगता है, ठीक है, execution proceedings पे भी लगता है, so option number C is the right answer. ठीक है, आगे हम प्रोसीड करें या इसको यहीं पे सस्पेंड करें? अब आप लोग बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने कर लिया। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेट वी हैव मोर 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 85 क्वेश्चन अभी और हैं हमारे पास इस एरिया को रिलेट करने के लिए, ठीक है। अगर आप कल करना चाहते हैं तो कल कर लेंगे। इफ यू वांट टू प्रोसीड विद फ्यू मोर क्वेश्चंस, 10-15 अगर 10-12 सवाल और करने तो वो भी कर सकते हैं। इट इज आई थिंक 8:15 हुए हैं। यस एवरीवन, आप लोग इतने साइलेंट क्यों रहते हैं? आई डोंट नो। यस, जो मेजॉरिटी कहेगी वैसे हम प्रोसीड कर लेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, ना आप लोग व्हाट्सएप पे जवाब देते हो यार, ना यहां पे रिप्लाई कर रहे हो। It seems to be that you are throwing it at my discretion. No, कसक का तो मना हो गया, ठीक है। डाटा लिमिट इज ओवर। ओह वेरी गुड, ग्रेट एक्सक्यूज। चलिए, सो विल कंटिन्यू। रेनी करिए सर, कंटिन्यू करो। मेरे ख्याल से रेनी, बाकी लोग मेरे ख्याल से कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे एंड ठीक है, सो विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। इसमें अभी हमारे 50 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। मेरी वो जो एक 40 मिनट्स की लिमिट होती है ना जूम की एप्लीकेशन पे, तो वो अब अप्लाई नहीं हो रही है बिकॉज आई हैव टेकन द लाइसेंस फॉर दैट, ठीक है। फॉर विद इन 1 मंथ वी हैव टू कंप्लीट यस सीपीसी अलोंग विद द एविडेंस, और जो हमारे कुछ एक रिमेनिंग लोकल लॉज थे तो उस पे जो भी हमें करना है वो विद इन 15 to 20 डेज हमें कवर अप करना है। सो वी कांट टेक वेकेशन इन दीज क्लासेस, छुट्टियां इसमें ज्यादा नहीं कर पाएंगे। चलिए, सो आज की क्लास को यहीं पे हम ओवर कर रहे हैं। विल मीट टुमारो सेम टाइमिंग्स इन द इवनिंग सेशन, ठीक है। मॉर्निंग वाले मॉर्निंग में आ जाएंगे। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच, विल मीट टुमारो।